दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि बहुत संवेदनशील मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। वो है हाउस चर्च के ऊपर जो पिटीशन लगाई गई थी उसके संबंध में। कल उसकी सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में जो कुछ हुआ है आप इस वीडियो में देखिए। 7-8 मिनट का है। Readings are complete. Readings are complete. एक क्या आपने लिखा Lordship, even state has supported our contentions. क्या In para 8, state has stated that if I permitted to read in my rejoinder, the subject provision under challenge of the act and rules do not restrict any individual or group of people from praying in their houses. And that is what our submission is. We are not restricted. There is no law which prohibits us to pray in our house. But notices are being served to us under this Act of 1984, stating that you cannot pray in your house. नहीं तो एक कोई नोटिस लगा रखा है आपने? हाँ, Annexure P2, Your Lordship, page 20, page number 16. Sorry, page number 25. Page 20. Annexure P2, page 25. If I am permitted to read, Lordship. आपको इस नोटिस के जरिए सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि आपके द्वारा दिन रविवार तथा अन्य दिन को ग्राम पहदा में आपके निवास प्राइवेट हाउस में धार्मिक सभा का कार्यक्रम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक धार्मिक भवन तथा स्थान विनिमयन अधिनियम 1984 एवं सार्वजनिक धार्मिक भवन तथा स्थान विनिमयन के नियम 1985 का प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है। विधि के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा निजी स्थान में धार्मिक कार्यक्रम आयोजन अस्थायी अथवा स्थायी हेतु संबंधित जिला कलेक्टर से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। Now your lordship kindly come to annexure P1 page 16, the main provision and the main page 16, the main object 16 annexure P1, the act 16 क्या कहता है? The act was enacted, your lordship. The purpose is an act to regulate the construction of public religious buildings and to restrict the use of public place for religious purposes. The main purpose of this act is for the construction of religious building. Now your lordship kindly see the definition clause, section 2, subsection C, page 17. Page 17 and section 2C. The definition of public. Public used with reference to a building or place signifies that such building or place, whether or not acquired, constructed and maintained by or at the expense of some specified persons or body of persons, is not the private. जो एक्ट है इसमें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक रिलीजियस बिल्डिंग है उसके लिए है और ये तो अपने घर में कर रहे हैं। That is not true, Lordship. नहीं, जो There is allegation that the petitioners who follow a certain religion, they on every Sunday they hold prayer in their houses. And my lords, may kindly have a look. There is a special act enacted in the Iswal state of Madhya Pradesh titled as छत्तीसगढ़ सार्वजनिक धार्मिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984. The object of the act is an act to regulate the construction of public religious buildings and to restrict the use of public places for religious purposes. After that, Lordship, I would just refer section 2A, which defines building. 2A, this is at page number 16. My friend has filed that document. Building means a house, shop, hut, shed or other structure or enclosure, whether roofed, not, of whatsoever material constructed and includes every part thereof, all walls, verandas, platforms, springs, doorsteps and the like. हाउस में आ जाएगा ये। House में. And further, Lordship, apart from this, B, place means any open space which is not a building. Even they organize prayer in front of their house. नहीं, ये तो अपने घर में जो नोटिस है वो अपने घर में कर रहे हैं। घर में कर रहे हैं। तो घर में मान लीजिए अगर कोई आदमी अपनी सभा कर रहा है या समथिंग कर रहा है, unless and until it is shown that in the guise of मतलब this prayer sabha, he is indulging in any conversion, this and that. That is different aspect. Suppose Here the complaint is that in their private house on every specified day जैसे भाई a meeting or gathering of congregation, क्रिश्चियंस के यहाँ प्रेयर सर्विस होती है, चर्च में होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई आदमी अगर अपने घर, आपका कोई घर है और घर में मतलब कोई रोज करते हैं ये invariably every Sunday, Every day. even every day. But sir, घर में only household persons, those who are residing, there is no restriction. But if outsiders gather there, if there is mass, then the act mandates that
permission of collector. That एक सेकंड रुको, समझ गए आपकी तो प्रॉब्लम समझ गए। C may be seen, Lordship. Next page number 17, the definition of अभी public. जो लर्नेड सिंगल जज ने हाँ, yes, जजमेंट दिया है I filed कि the परमिशन judgment. की जरूरत नहीं, नहीं वहां पर In सर covering वो that- क्या है, वो क्या चीज था? वो जो my friend has filed that order, हाँ, वो वहाँ क्या प्रेयर थी इनकी, मतलब इसी तरह के कोई कहाँ है वो ऑर्डर, कहाँ है रिजॉइंडर में? filed in covering memo, Lordship. That it is, Lordship, the covering memo dated 9/4/2026. 9 Para 6 में hide किया। There is, if I may permitted to read, Lordship. there is no discussion with the Act 1984, with all due respect. And Lordship. there is no, Discussion with respect to the Act of 1984 and the rules. अच्छा अच्छा, Because there are ये specific- prayer क्या थी इनकी, ऐसे एक मिनट देख लें। मालूम यही है ना, तो ये नंबर 2 पे लगा है ना। जी, पेज नंबर 3 में they have prayer is- नोटिस बाय द पुलिस स्टेशन, ये नोटिस कहाँ लगा रखी थी उसमें, ये नोटिस कॉपी लगा रखा है आपने P2, ये सिमिलर नोटिस जाती थी इसी एक्ट के तहत, ये कौन सी No, नोटिस Lordship, this was another notice. नहीं, हमने तो- चैलेंज किया है 1984 की थी? नोटिस। नहीं, ये 17/12/25 का जो ऑर्डर है, इसमें नोटिस में परहैप्स स्पेसिफिक नहीं था, बट इन दिस नोटिस व्हिच इज अंडर चैलेंज इज पिटीशन देयर इज अ स्पेसिफिक रेफरेंस what टू was द the एक्ट. state doing in that petition? Why it's not brought we have- within the knowledge of the We are honorable assailing, court? with all due respect, we are assailing this order, Lordship. We are assailing this order before the वो हैगा। Lordship. Lordship, I have instructions. I have instructions. And चलिए, further, इसको Lordship, फिर उसके बाद ही, Well, क्योंकि एक जज ये कह रहा है डिवीजन बेंच है, तो it cannot be, it has to be and there considered. are judgments of various other high courts हाँ. which say कि every freedom of religion doesn't mean that it's an absolute. It has to be with certain limitations. And here only limitation is that they have to seek permission from collector. हाँ, It is उसमें not the case that collector is stopping them. But the thing is that the learned single judges hold that no permission is required. Yes, sir. If you are challenging that order Act and says- is relying on, तो you Act of 84 says that permission is इसीलिए Well, very true, very true. contradictory order हो जाएगा। kindly appreciate one thing, Lordship. Let that order be come. वो आप जिस पे रिलाई कर रहे हैं वो लोग चैलेंज कर रहे We- हैं, let that I have also come. instructions, Lordship. हाँ, उसमें वो प्रेयर भी थी 10.3 में, तो जरा सा वो ये कॉन्फ्लिक्ट लिखे, द प्लीडिंग बिटवीन पार्टीज हैव बीन एक्सचेंज, लेट द मैटर बी, अभी आपका टाइम लगेगा आने में वो पिटीशन, 2 हफ्ते बाद लगा देते हैं इसको, After 3 weeks maybe. 3 weeks लगा दें, 3 weeks। And I will ensure that it is filed. हाँ, देख लो, दिस द मैटर आफ्टर 3 weeks अगेन, Lordship, any fixed date may be given. तीन आ जाएगा, वो आ जाएगा तो उसी के साथ कनेक्ट कर लूंगा इसको भी, आ जाने दो, आ जाएगा, कनेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। हमारे होनहार वकील अर्पित लाल, उनने जो आर्ग्यूमेंट उसमें किया है, इसकी तैयारी में महीनों लगे थे हमको। इसमें जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा सा हतोत्साहित करने वाला इसलिए है क्योंकि हम को फिर से 3 हफ्ते का समय दिया गया है। भाइयों, मैं आप लोगों को साफ बताना चाहता हूं, अगर ईसाई समाज को जो हराएगा और जो हम लोगों को हर किस्म से नष्ट करेगा हमारे चर्च को, वो हम खुद हैं। ये बात मेरी सुन लीजिए, आज मैं बहुत आक्रोश के साथ बोल रहा हूं, और वो इसलिए है क्योंकि चापा का कोई क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी है करके वो लोग अपना टंग से उचक करके पहुंच गए थे हाई कोर्ट में। वहां पे सिर्फ नोटिस आई थी और नोटिस को कैंसिल करने के लिए उन लोगों ने एक एप्लीकेशन लगा दी थी, और हमने जिस धारा के अंतर्गत काम किया गया है उस धारा को चुनौती दी थी। अब वो हाई कोर्ट ने उसकी नोटिस को तो शून्य कर दिया, और बड़े ताले पीट रहे थे ये लोग जाकर के कि जाके हम जो बड़े बड़े नहीं कर पाए वो हम कर पाए हैं, और उसका खामियाजा आज आप और आपका चर्च भुगत रहा है। उसी पिटीशन को ऊपर आज डबल बेंच में जाने के लिए उसने आदेश दिया है कि ऐसे ही एक याचिका चापा की सुनी गई है और उसमें हम लोगों ने एक आदेश दिया है, तो उसमें वकील ने फिर समय मांगा है और वो डबल बेंच में जाएगा, और डबल बेंच में जाते ही साथ वो चापा वाला काम ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वो रिलीफ मांग रहे हैं सिर्फ अपने नोटिस को खत्म करने के लिए। हम रिलीफ मांग रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में
जो धारा लगाई जा रही है वो धारा गलत है। इस किस्म से ये हमारे काम में रोड़े अटकाते हैं, और रोड़े वही अटकाते हैं जो आज हमारे समाज से हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए ये लोग इस किस्म से आज पूरे समाज को नुकसान कर रहे हैं। दुर्ग से भी उल्टे सीधे इस किस्म के एप्लीकेशन लगाई गई थी, वो तो किस्मत थी कि कोर्ट ने पहले रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो उसी में हम 6 महीने गोल गोल घूमते रहते। और वही अभी हो रहा है। धर्मांतरण विधेयक के 10 बार बोला है कि आके बात कर लो और ढंग से एक लगाओ, तो सब कूद कूद के अपने डेढ़ होशियारी में मर रहे हैं वहां 6 7 एप्लीकेशन लगा के, इसलिए कि उनका नाम होना चाहिए, बाकी किसी का नाम नहीं होना चाहिए। सिर्फ नाम का नाम कमाने के लिए आज हमारे समाज के लोग अपने समाज को समाप्त कर रहे हैं, जला रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध आप क्या करेंगे, ये समाज इसका फैसला करे। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलता। हमने अपने तन्मयता से काम किया है। रही बात हाउस चर्च की, तो 3 हफ्ते के बाद हम पूरे आशान्वित हैं कि हमको बिल्कुल हमारे पक्ष में ऑर्डर मिलेगा। इस किस्म के बीच में जो रोड़े अटकाने से सिर्फ समय बढ़ता जाता है और फिर समय बढ़ने के बाद कुछ भी हो सकता है। आप सबको जय जोहार, प्रभु में नमस्कार।